A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th accountancy. As you know very well, in the last three videos, we discussed the computerized in accounting as well as computerized accounting system, as well as we discussed the practical problem related to the financial statement of sole proprietorship. And on the basis of the demand given by you, my online classes, sir, please make some more videos on the rectification of error using suspense account. Basically, you know very well when we are talking about the rectification of the error. So rectification of the error are of various types of the nature, like error of commission, error of omission, error of casting, compensating error, and error of principal. But when we are talking about the rectification of the error using suspense account, so before that, we have to have sufficient knowledge about the nature of the error. It means where we found the error and when we rectify such types of the error. And I know कि मैंने इस टॉपिक पे कई वीडियोस बनाए हुए हैं, बट on the demand of your suggestion as well as your problem, let's we take the few practical problem related to the rectification of the error using suspense account, and at the end of today's video we will take some important point related to the suspense account. What are the basic concepts beyond the suspense account? So before starting the today's video, it is my humble request to all the students to clarify and creating a better understanding regarding this topic. Please see the video very carefully and make a proper notes in your copy, because in the accountancy chapter we solve a lots of practical problem related to all the topics, as well as I give all the theoretical notes, and frankly I said you are not active at all on YouTube videos. Okay, so I hope you will follow all the instruction given by me. You will follow all the instruction given by me very sincerely, and from today you will make a proper notes related to your all the concept, especially the weakest point of your चैप्टर. ओके, आपके ने जितने चैप्टर पढ़े उसमें जो भी वीकेस्ट पॉइंट है पहले उस पर फोकस करो, बिकॉज जो आपको आता है उसमें परफेक्शन की जरूरत है, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत है. जो नहीं आता उसको फाइंड आउट करो और उसको सॉल्व करो. So in this video, let's we start the first practical problem related to the rectification of the error, and thereafter we will move to the concept of the suspense account. And I request to all the students, please watch this video very carefully. Okay, so please note down the one question which are very important for us. The question is, rectify the following error. क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया रहेगा कि ये टू साइड एरर है कि वन साइड एरर है, आपको खुद से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. So the question is, rectify the following error, and error are as follows. The first error will be as per the question, that is cash sales to Radhika, that is the cash sales to Radhika rupees 15,000 was shown as
shown as receipt of commission in the cash book. Okay, so the first error is cash sales to Radhika rupees 15,000 was shown as a receipt of commission in the cash book. The second error are as follows. The second error is furniture purchased from where? From Rao, Mrs. Rao, Messrs. Rao या Mrs. Rao, furnishing for rupees 8,000 was entered into the purchase book. Okay, this is the second error, and let's we take one more error. The third error will be cash sales to Rajni. Cash sales to Rajni rupees 5,000 recorded in purchase book. So this is a basic question. As you can see that the three errors which are occurred by the accountant due to the insufficiency in knowledge. So one by one we solve this question with the help of you and with the help of me also. So the first error are cash sales to Radhika. The solution are कैश सेल्स टू राधिका रुपीज 5,000. आप इतना समझो, कैश सेल्स टू राधिका. तो आपने सेल किसको किया? राधिका को. कितने का सेल किया? 15,000 का कैश सेल्स था. सो करेक्ट एंट्री क्या होती अगर हम ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फर्स्ट के लिए? सो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री मतलब सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी? द करेक्ट एंट्री विल बी कैश सेल्स टू राधिका, दैट इज कैश अकाउंट डेबिट to sales. What is the amount? That is 15,000. This is the correct entry. Was shown as receipt of commission in the cash book. यानी कैश बुक के किस साइड में लिखा गया? कमीशन के. यानी कि हमने कैश बुक में तो शो किया बट रॉन्ग क्या हो गई? इनकरेक्ट एंट्री क्या हो गई? इनकरेक्ट एंट्री वी पास्ड. हमने गलती से एंट्री क्या पास कर दी? दैट इज अ कमीशन रिसीप्ट मान लिया, उसे रिसिप्ट मान लिया, रिसिप्ट ऑफ कमीशन, जबकि वो क्या है? रिसिप्ट ऑफ सेल, कैश सेल. तो हमने उसको गलती से क्या मान लिया? वी एज्यूम दैट कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन. लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि मैंने एकदम क्लियरली समझाया था कि जो करेक्ट होता है, द एंट्री विच आर करेक्ट, दैट इज टू सेल्स. होना चाहिए था टू सेल्स, हमने क्या कर दिया? टू कमीशन. तो गलत है ना, कमीशन क्रेडिट किया. करना किसको चाहिए था? सेल्स को क्रेडिट. तो जब हम एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन जब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे, क्या करेंगे? रेक्टिफाइड एंट्री. तो रेक्टिफाई एंट्री क्या होगी? दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज योर मेन सॉल्यूशन. मेन सॉल्यूशन मतलब यही आंसर होगा आपका. गलत क्या था? कमीशन. सही क्या था आपका? सेल्स. तो आप क्या करोगे? जो गलत होता है उसको अपोजिट. यही मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था. When we resolve the two-sided error, जब हम टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं तो जो रॉन्ग एंट्री होती है उसको हम लोग क्या कर देते हैं? रिवर्स. और जो करेक्ट एंट्री होती है उसको एज इट इज वैसे ही पेस्ट कर देते हैं. जैसे यहाँ पे रॉन्ग क्या है? कमीशन. रॉन्ग कमीशन है, कमीशन क्रेडिट हुआ है तो उसको रिवर्स कर देंगे तो कमीशन विल बी डेबिटेड.
commission will be debited. What amount? 15,000 to, सही क्या है? सेल्स, एज इट इज सेल्स को उतार दो, सेल्स को एज इट इज उतारना है और कमीशन को रेसिप्रोकल कर देना है, यानी रिवर्स कर देना है. सो दैट योर आंसर विल बी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजेक्शन, द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी commission account debit to sales. So I hope you will get out, you will get things how we rectify the error. हमें कुछ error ऐसा नहीं है, हमारे पास कोई eraser नहीं है कि we rough it, we remove the errors. With the help of the entry, हम entry की मदद से क्या कर रहे हैं? error को rectify कर रहे हैं. अब आप देख लो खुद, मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ. आपने सॉल्यूशन देख लिया, द फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या होगा? कमीशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अब देखो करेक्ट, इस एंट्री के करने से क्या हुआ? इस एंट्री के करने से आपका कमीशन जो है वो कट हो गया, बचा क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. व्हाट इज द कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स? कट कैसे हुआ? सेम अमाउंट से क्रेडिट है और सेम अमाउंट से क्या हो गया? डेबिट हो गया. वैल्यू भी सेम है तो कट हो गया, बचा क्या? सेल्स. तो करेक्ट एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो देखा आपने, दिस इज अ मैजिक, अकाउंट का मैजिक है ये, कि आपने इनकरेक्ट एंट्री को रेक्टिफाई एंट्री की हेल्प से क्या कर दिया? करेक्ट बना दिया. आपने क्या किया? कमीशन को डेबिट करके सेल्स को क्रेडिट करके आपने क्या कर दिया? आपने कमीशन अकाउंट को खत्म कर दिया और उसकी जगह कौन सा अकाउंट प्लेस कर दिया? सेल्स अकाउंट. So you can see that the entry will be cash account debit to sales and your correct entry is also cash account debit to sales. Yes sir. Is that clear? So how we rectify the first entry? आपने देख लिया फर्स्ट एंट्री रेक्टिफाई हो गई. यस, फर्स्ट एरर आपका रेक्टिफाई हो गया. अब हम लोग चलते हैं नंबर सेकेंड. सेकेंड एंट्री को हम लोग रेक्टिफाई करते हैं. सेकेंड को हम लोग क्या करते हैं? एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं. द नंबर सेकेंड, द नंबर सेकेंड विल बी फर्नीचर परचेज फ्रॉम मैसर्स रॉ फर्निशिंग फॉर ₹8,000 was entered into the purchase book. हमने परचेस क्या किया? फर्नीचर. और जब हम फर्नीचर परचेस करते हैं तो डेबिट क्या करते हैं? एसेट्स. सो करेक्ट एंट्री क्या होगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैसर्स रॉ. नाम दिया हुआ है, कैश का वर्ड यूज नहीं है. तो एंट्री विल बी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मैसर्स रॉ. कितने रुपीस का? 8,000 का. दिस इज अ करेक्ट एंट्री. बट हमसे हुआ क्या? गलती क्या हो गई? हमने उसको इंटर्ट कहां कर दिया? परचेज बुक में. यानी हमें लिखना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में डेबिट में, और हमने लिख कहां दिया? परचेज. दिस टाइप्स ऑफ द एरर विल बी नोन एज द प्रिंसिपल एरर. ये किस तरह का एरर था? ये पोस्टिंग एरर था. दिस इज नोन एज द एरर ऑफ पोस्टिंग. और ये किस तरह का एरर है? दैट इज द एरर ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल एरर है कि आपको डेबिट करना था एसेट्स अकाउंट, बट ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज आपने फर्नीचर की जगह डेबिट क्या कर दिया? परचेज. सो इनकरेक्ट एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू मैसर्स रॉ. दैट इज 8,000. अब आपको क्या करना है? इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है. आपको इस एरर को रेक्टिफाई करना है. कैसे रेक्टिफाई करोगे? सर अभी आपने समझाया, जो सही है उसको एज इट इज वैसे ही रहने दो, और जो गलत है उस एरर को क्या कर दो? उस अकाउंट को क्या कर दो? अपोजिट कर दो. सो वी हैव अ सफिशिएंट स्पेस. सो हम रेक्टिफाई एंट्री क्या पास करेंगे? द रेक्टिफाई एंट्री विल बी ऑफ दिस क्वेश्चन इज, गलत क्या है सर? ये सही क्या है? ये यानी जो गलत है, परचेस को गलत है तो उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सर उसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे. सो रेक्टिफाई एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? रेक्टिफाई एंट्री आपकी हो जाएगी दैट इज अ फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि जो सही है एज इट इज उसको उतार दो, और जो गलत है उसको क्या कर दो? अपोजिट. यानी परचेस क्या है? डेबिट. जो गलत है उसको अपोजिट कर दो, दैट इज परचेस. 8,000. So this is your answer of this problem. So the rectify entry will be furniture account debit to purchase, amount of 8,000, 8,000. So you can see that how we rectify this entry. So we solve the second error also.
यस सर, बहुत इजी है, अभी तक तो इजी है और इजी है भी। एरर को रेक्टिफाई करना आराम से बात है, बट प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आप लोग को जनरल उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता। सो इस दैट्स व्हाई दिस चैप्टर इज कम्स आफ्टर द चैप्टर ऑफ जनरल। जब आप सब कुछ पढ़ लेते हो, लाइक अ डेप्रिसिएशन, लाइक अ you can also study the different provisions and reserve. You will also studied about the bills of exchange, बैंक reconciliation statement, यानी आपने बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अब आप पार्ट ए का 11 के पार्ट ए का लास्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हो लगभग। सो रेक्टिफिकेशन, एरर का रेक्टिफिकेशन आप तभी कर पाओगे जब यू हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट दी जर्नल एंट्रीज। तो ये जर्नल एंट्रीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम जर्नल एंट्री पास करते हैं। सो नाउ वी विल मूव टू द थर्ड एरर। हम लोग थर्ड एरर पे चलते हैं। यस सर, थर्ड एरर। द थर्ड एरर विल बी, if you are talking about the third error, cash sales to Rajni rupees 5000 recorded in purchase book। आपने सेल किया रजनी को, किसको सेल किया? रजनी को, और आपने उसको रिकॉर्ड कहां कर लिया? परचेस बुक में। सर ये गलत हो गया। यानी यहां आप देखो तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? द करेक्ट एंट्री विल बी that is a purchase, that is a sales account, that is a the correct entry will be a cash sales to Rajni. So the entry will be Rajni account debit to sales, Rajni account debit to sales. This is a correct entry of 5000। 5000 रुपए में आपने गुड्स को सेल्ड किया। बट आपसे गलती क्या हो गई? गलती ये हो गई कि आपने उसको रिकॉर्ड कहां कर लिया? परचेज बुक में। जब आपने उसको परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, सो यू विल फाइंड द एंट्री दैट इज परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी 5000। अब यहां आप देखो, अभी तक अलग अलग अकाउंट में एक एक मिस्टेक हो रही थी, यहां दो से अधिक अकाउंट में मिस्टेक्स। आप देखो, रजनी डेबिट हुई है, सेल्स क्रेडिट हुआ है, और यहाँ परचेज डेबिट हुआ है, रजनी क्रेडिट हुई है। बहुत ही केयरफुली देखना है। दैट्स व्हाई आई विल सेलेक्ट दिस प्रॉब्लम ऑल्सो। मैं टिक लगा दे रहा हूं क्योंकि मुझे अभी से पता है कि आपको ये इसका सॉल्यूशन पता चल जाएगा और ये आपको बहुत इजी लगेगा। सो मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको ये समझाया है कि जब आप करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री पास कर लो, तो जो सही है उसको एज इट इज उतार दो और जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। यहाँ पे तो गलत दोनों ही साइड है। इस क्वेश्चन में बाकी ऊपर के दोनों एरर्स में क्या डिफरेंस है? इन दोनों ए और बी के एरर में और सी के एरर में बेसिकली डिफरेंस यही है, सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि अभी तक जितने एरर आ रहे थे उसमें एक जर्नल एंट्री में सिर्फ एक अकाउंट गड़बड़ हो रहा था। जैसे अगर आप कैश सेल्स टू राधिका देखो, उसको हमने रिसीप्ट्स कॉलम ऑफ द कैश बुक में, तो उसमें कमीशन अकाउंट में गलती हुई थी और वहां सेल्स में गलती हुई थी। यहां एरर में क्या हुआ है? रजनी डेबिट हुई होना चाहिए, सेल्स क्रेडिट होना चाहिए, उल्टा हो गया। सेल्स क्रेडिट भी नहीं हुआ, उसकी जगह परचेज डेबिट हो गया, और रजनी को होना चाहिए था डेबिट, हो गई क्रेडिट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है। इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा एक प्रिंसिपल याद रखो, व्हेन वी रेक्टिफाई द टू साइडेड एरर, जब हम टू साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं तो बेसिकली आपके माइंड में ये चीज रहनी चाहिए, इज दैट जो सही है एज इट इज उतार दो, जो गलत है उसको रिवर्स कर दो। सही क्या है? सो द करेक्ट एंट्री विल बी रजनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो एज इट इज उसको कॉपी कर लो। यहाँ स्पेस आपको दिख रहा है प्रॉपरली। सो मैंने क्या किया, रेक्टिफाइड एंट्री के लिए रजनी को डेबिट कर दिया और सेल्स को क्रेडिट कर दिया। सर क्लियर हो गया? कितना अमाउंट है? 5000। 5000। और गलत क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी। गलत क्या है? परचेज अकाउंट डेबिट टू रजनी। इसको अपोजिट कर दो, यानी परचेज को क्रेडिट और रजनी को डेबिट। अब यू कैन सी दैट the rectified entry will be Rajani account debit 5000, Rajani account debit 5000, to sales 5000, to purchase 5000। but you know very well, जब दो सिमिलर अकाउंट डेबिट ही हुए हैं, दोनों डेबिट हुए हैं, तो क्यों ना हम दोनों को मर्ज कर दें, यानी 5 और 5 प्लस कितना हो जाएगा? 10000। यानी ऊपर के रजनी की कोई जरूरत हमको अब नहीं है।
मैंने रजनी अकाउंट को आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया. सो द रेक्टिफाइड एंट्री विल बी ऑफ दिस एरर, द रेक्टिफाइड एंट्री ऑफ दिस एरर will be Rajni account debit to sales to purchase. So this is the basic rectification of the entry. As you can see that in this question, in this situation you can see that the first will be the example of the error of posting, second one is the error of principal, and third one is a cash sales to Rajni rupees recorded in the purchase book. This is a also the error of posting. ये also किसका error है, error of posting का error. इसमें भी आपने posting गलत कर दी, करना चाहिए था सेल्स बुक में, लिख कहाँ दिया, परचेस बुक में. So this is a question and you can see that how we solve this question. Now let's we take one more example for your clarification, for your knowledge. Okay, so let's we take one more example. You know very well कि there are basically two types of the one sided error. The first one is a one sided error located before the preparation of balance sheet, before the preparation of trial balance, and number second type of the one sided error is one sided error rectified after the preparation of balance sheet. So इस सिचुएशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है मैं आपको बता दूं. When any error located and rectified after the preparation of trial balance, यानी जब कोई एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद फाइंड आउट किया जाता है, लोकेट किया जाता है और उसको रेक्टिफाई किया जाता है, तो इस सिचुएशन में बेसिकली इस सिचुएशन में हम लोग करते क्या है, we pass the journal entries, we pass the journal entry. So in this situation we passed the rectification entry. Rectification entry means like a journal entry, जैसे हम लोग वन साइडेड एरर में करते थे. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब हम वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद या लोकेट करते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो उस सिचुएशन में हम एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं. एंड रेक्टिफिकेशन एंट्री will be passed with the help of rectification entry will be passed with the help of respective accounts and a newly account with the help of the respective account जिसमें गलती हुई है, as well as the newly account called suspense account. यानी कि जब हम वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई करते हैं बेसिकली कब, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, तो सिचुएशन में हम जनरल एंट्री पास करते हैं. पॉइंट नंबर वन. नंबर सेकंड पार्ट इज दिस कि हम इसमें जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते हैं, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास में जो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की जाती है वो किस कैसे से की जाती है, रिस्पेक्टिव अकाउंट, जिस अकाउंट में गलती है उस अकाउंट, एज वेल एज एक सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेते हैं. किस अकाउंट की हेल्प लेते हैं, सस्पेंस अकाउंट. Okay, what is suspense account? Please note down in your copy. What is suspense account? Suspense account are those account, suspense account is an account which are used on temporary basis, on temporary basis for any transaction
transaction or balance that cannot be identified. Basically you know very well, जो वन साइडेड एरर होते हैं, मैक्सिमम जो वन साइडेड एरर होते हैं वो सिर्फ एक अकाउंट में इफेक्ट डालते हैं. यू नो, यू बेटर अंडरस्टैंड अबाउट दिट कि जो वन साइडेड एरर होते हैं सिर्फ एक साइड इफेक्ट डालते हैं. अब मान लीजिए जैसे आपने कोई एरर किया, राम अकाउंट में आपने क्या किया, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राम के डेबिट में पोस्ट कर दिया, सेल्स में पोस्ट नहीं किया, तो सेल्स के एक ही पार्ट पे तो इफेक्ट पड़ा, सेल्स क्रेडिट नहीं हुआ, राम तो डेबिट हो गया. तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद उसको रेक्टिफाई करोगे, उसको सही करोगे, उस एरर को रेक्टिफाई करोगे, तो किस अकाउंट की हेल्प लोगे, राम अकाउंट. यानी बेसिकली अगर हम ये बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाते हैं कि राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1000 रुपीज का था, आपने राम में एंट्री पास कर दी, सेल्स में नहीं की. एंट्री मतलब पोस्टिंग की मैं बात कर रहा हूं. राम के डेबिट में तो आपने पोस्ट कर दिया, सेल्स के क्रेडिट में पोस्ट नहीं किया. और ये एरर कब फाइंड आउट हुआ, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद. यानी अब लेजर में भी रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता. लेजर पहले क्या बनता है, जनरल, फिर लेजर, फिर क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस. तो गाड़ी तो निकल चुकी है, आपने लेजर भी बना लिया. अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले अगर इसको पकड़ लेते तो सेल्स अकाउंट में जाकर क्रेडिट कर देते, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे. अगर एरर ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले यानी लेजर तक है तो हमारे बात में हाथ, हमारे हाथ में बात है, हम एरर को तुरंत लेजर अकाउंट बना के रेक्टिफाई कर सकते हैं. लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद कोई गलती पकड़ी जा रही है तो सिचुएशन में, यू नो वेरी वेल, इस सिचुएशन में हमारे पास लेजर बनाने का फिर से मौका नहीं है. क्योंकि लेजर बनाने का मौका कब होता है, ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले. तो ऐसा नहीं कि हम पास्ट में जाके ट्रायल बैलेंस सही करें, फिर लेजर सही करें, फिर ट्रायल बैलेंस बनाए. नहीं, इतना टाइम नहीं होता अकाउंटेंट के पास. ट्रायल बैलेंस बना दिया, एरर मिल गया, फिर एरर को रेक्टिफाई करने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री या एडजस्टमेंट एंट्री ही सहारा लिया जाता है. सो अगर हम कोई भी एरर ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं, बेसिकली अगर ट्रायल बैलेंस के बाद रेक्टिफाई कर रहे हैं तो सिचुएशन में ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है. इस सिचुएशन में आप सेल्स को फिर से क्रेडिट कर सकते हो, क्योंकि सेल्स को आपको क्रेडिट करना था, 1000 रुपए सेल्स को क्रेडिट किया, और डेबिट में कोई नहीं है तो डेबिट में जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है. और वन साइडेड एरर में जब किसी एरर को ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई किया जाता है तो उसका भगवान होता है सस्पेंस अकाउंट. यानी कि इस सिचुएशन में जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उस सिचुएशन में यू नो वेरी वेल कि भगवान कौन है, सस्पेंस. द गॉड इज सस्पेंस. विद द हेल्प ऑफ द सस्पेंस अकाउंट वी रेक्टिफाइड all the errors which are located and rectified before the preparation of the trial balance. इसके डिटेल में बाद में बात होगी. सो यू कैन सी दैट डेफिनेशन ऑफ द सस्पेंस अकाउंट विच आर यूज्ड ऑन टेम्पोररी बेसिस. इसको हम लोग टेम्पोररी बेसिस पे यूज करते हैं इस अकाउंट को, कि जब कोई एरर होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, किसी ट्रांजेक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए, या कोई बैलेंस है, या कोई मान लीजिए ट्रायल बैलेंस बनाया आपने, दोनों साइड इक्वल नहीं आता. यू नो वेरी वेल, आपने पढ़ा भी है शुरुआत के चैप्टर्स में. तो दोनों अकाउंट्स को, दोनों डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को इक्वल करने के लिए ट्रायल बैलेंस को वी यूज्ड अ सस्पेंस अकाउंट. और सस्पेंस अकाउंट की हेल्प से हम एरर को रेक्टिफाई करते हैं. सो दिस इज अ टेम्पोररी अकाउंट विच आर यूज्ड फॉर एनी ट्रांजेक्शन और बैलेंस दैट कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड. जिस अकाउंट का अभी पता नहीं है कि ये गलती किस कारण हुई है, क्या इसका बेसिक पर्पज है, तब तक हम सस्पेंस अकाउंट की यूज कर सकते हैं. So we pass this rectification entry with the help of the suspense account when we rectify the one-sided error after the preparation of trial balance. So in today's video you can see that the one-sided error can be rectified at the two stage. Either the one-sided error can be rectified before the preparation of trial balance, or the one-sided error can be rectified after the preparation of the trial balance. So in the next video we will come to you and introduce a new practical problem which are the combination of the one-sided error which are located and rectified after the trial balance, and we can see that how accountant resolves such types of the error with the help of the suspense account. And this is account is a god, जिसको कहता है ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है. तो जो वन साइड एरर ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पकड़े जाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद रेक्टिफाई या लोकेट किए जाते हैं, उनको सुधार करने के लिए, उनको रेक्टिफाई करने के लिए वी कैन टेक द हेल्प ऑफ सस्पेंस अकाउंट. So I hope today we cleared all the topics very easily.
and I request to all the students, please solve all the practical problem given in your book. That is the chapter number 10, rectification of error. So please solve all the practical problem which are given in your book under the chapter number 10. Okay, so I hope आप सबको मजा आया होगा, पढ़ाई भी अच्छे से समझ में आई होगी आपको आज की. So thank you, thanks a lot, take care.